students, 2 units of physics are completed. We have completed the unit light reflection and refraction. We have also covered the unit human eye, and now we are starting the third unit of physics, that is electricity. So we are going to start the third unit, that is electricity. So before going into the unit electricity, let's have a brief discussion about what electricity is. कैसे इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है. तो स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम टू द बिग इंडस्ट्रीज, सो लेट अस टेक first the example of our daily uses of electricity. You can think our mobile phone is working on the electricity. If we will not charge our mobile phone with the help of electricity, it would not work. Our refrigerator is working on the electricity. Our cooler is working on the electricity. Our mother is using the electricity in the kitchen for mixing and grinding the things. So everything is based on the electricity. So you can think that without the use of electricity, we cannot imagine our life. Our life would be disturbed without the use of electricity. You can think कि if अगर लाइट घर में नहीं आ रही है, in that case हमें कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं. सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, very useful for a comfortable life. That's why we are studying the chapter electricity in your class 10th. So जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, I know some of the questions that crops into the minds of students are, what is electricity? Electricity होती क्या है? I know these type of questions are also cropping in your mind कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ठीक है, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ट्रांसमिट होती है. मतलब आपको पता है कि हमारे घर में जब आप एक स्विच ऑन करते हो तो फैन ऑन हो जाता है, तो कैसे लाइट उस स्विच से इस फैन के अंदर क्या हुई है, ट्रांसमिट हुई है. कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर हाउसेस के अंदर क्या होती है, जनरेट होती है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसमिट होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर. तो व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया और कैसे इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिट हो रही है. नेक्स्ट, व्हाट डज या हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी मेक ए बल्ब ग्लो. अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से एक स्विच ऑन करते ही फैन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, एक बल्ब है वो ग्लो करने लगता है. सो व्हाट इज द रीजन कि इलेक्ट्रिसिटी मेक्स अ बल्ब ग्लो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट मस्ट बी कमिंग इन योर माइंड. सो डूइंग दिस यूनिट we will understand one by one all the answers of these questions. You slowly study, you will get all the answers of these questions. So this is a quick I must say discussion about the electricity. Now going deep into the electricity, let's first understand about the charge. What is a charge? Students, you have studied about the charge in chemistry कि you have two types of charges, positive charge and negative charge. I know this you have already understood कि we have two types of charges. We study two types of charges, positive charge and negative charge. But इससे भी पहले अगर हम बात करें, you know, any substance, any matter is made up of atoms. कोई भी substance है, कोई भी matter है, that is made up of atoms. और atoms का structure भी, now you are aware of the structure of atom कि atom जो होता है उसके अंदर protons होते हैं, neutrons होते हैं, और electron है वो चारों तरफ क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. अगर मैं आपको एटम पे ले चलूं, दिस इज एटम, this is the structure of atom. Inside the atom, at the core of the atom, there is nucleus, and inside the nucleus we study protons and neutrons. यही पढ़ते हैं आप. And electrons are revolving around the nucleus. तो एटम के अंदर, एटम कंसिस्ट ऑफ
protons, atom consists of electrons and atom consists of neutrons. ये आप सबको पता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब क्योंकि स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज, सो बिफोर स्टडिंग द चार्ज वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. आपको पता है कि प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ से आया है. जो प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है वो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है. दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन्स आर सेड टू बी न्यूट्रल. they does not have any charge on them. so न्यूट्रॉन्स को हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं. तो हमने क्या सीखा कि चार्जेस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो जो प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो न्यूट्रल है. कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन्स के ऊपर नहीं है. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ do we have two types of charges. We have two types of charges, positive charge and negative charge. तो students अब बात करते हैं, अगर if we have two charges, positive and you know same charges क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे. ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. If we take two negative charges, they would also repel each other. But if I take one positive charge and one negative charge, now they will attract each other, students. Attract each other. So इससे हम क्या conclusion निकाल सकते हैं? From this we can conclude that like charges repel each other. Like charges repel each other. ठीक है. बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. On protons there is positive charge, electrons के ऊपर charge is negative and neutrons के ऊपर neutrons are neutral. They do not have any charge on them. And same type of charges, like charges, like मतलब same type के charges, चाहे वो positive हो या negative हो, तो इन तरह के charges को हम बोलते हैं like charges. जो होंगे तो वो repel करेंगे एक दूसरे को. अगर unlike charges होंगे, unlike मतलब एक अगर नेगेटिव होगा, एक अगर पॉजिटिव होगा, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि आई हैव गिवन यू two charges, one is positive charge and second is negative charge, will they attract each other or will they repel each other? Then you would answer me, ma'am, they would attract each other because they are unlike charges. One is positive charge and second is negative charge, so definitely they would attract each other, they would not repel each other. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, हमने पढ़ लिया प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है. एक प्रोटॉन के ऊपर, इफ आई टॉक अबाउट वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? तो वन प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. अब बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा. एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. सो दिस मच इज द चार्ज which exist on one electron. तो अगर मैं बोलूं कि what is the charge on one electron, then you would say ma'am minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then if I'll ask you what is the charge on one proton, proton के ऊपर कितना charge है, then you would say ma'am it's 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs.
And what is the charge on neutron? On neutron there is no charge. Neutron is neutral. So I hope students आपको इतना समझ आ गया है. Now move on to the second concept, and that is what are insulators and conductors. Conductors and insulators. Today we are just having a brief discussion about the electricity. This is just an introduction. From the next lecture we will start our study about the electricity. What are students conductors and insulators? Suppose ये मैंने एक सब्सटेंस ले लिया है, कोई मैटर है, कोई मटेरियल है, उसके अंदर आपको पता है प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. दिस इज अ मैटर, you can see substance, and inside the substance there are n number of atoms, and inside the atoms we know there are protons, there are neutrons and there are electrons. So अगर मैं यहाँ पे ये बड़े सर्कल्स फॉर्म बना रही हूं and I'm making some dots in between the circles. So students, these circles represents the protons and these electrons represents, these small dots represents the electrons. So I want to say any matter, any substance consists of protons as well as electrons. Students, inside the matter, inside the substance, neutrons are also there, but I'm not talking about the neutrons because neutrons के ऊपर कोई charge नहीं होता है. क्योंकि we are talking about the charge, so I will talk about the protons and electrons only. Because protons के ऊपर जो charge होता है वो positive charge होता है, electrons के ऊपर जो charge होता है वो negative charge होता है, और neutrons के ऊपर कोई भी charge नहीं होता है. Neutrons are neutral. So I'm not talking about the neutrons over here. Definitely inside the matter, inside the substance, neutron would also be there, but presently I'm not talking about the neutrons because neutrons there is no charge. Neutrons are neutral. और क्योंकि we are talking about the charge, so I'm only talking about the protons and electrons. So students, this is a matter, or you can say this is substance made up of atoms, and inside the atoms protons, neutrons and electrons are there in the substance. So protons के ऊपर positive charge है, electrons के ऊपर negative charge है. अब स्टूडेंट्स बात ये करते हैं कि किसी भी मैटर, किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं वो स्टूडेंट्स फिक्स्ड होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं. मूवेबल होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनसाइड दिस मटेरियल सरफेस, इनसाइड दिस मैटर सरफेस, इनसाइड दिस सब्सटेंस वो क्या कर सकते हैं, मूव करने के लिए फ्री हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन आपके इधर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में जा सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द material surface, inside the matter, inside the substance, they can move freely. But जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. अब स्टूडेंट्स इसके डिस्कशन पे, based on this discussion, we will learn about the conductors and insulators. So आपको मुझे ये बताना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं. कंडक्टर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं to move inside the surface of a material, inside the surface of a substance, inside the matter. So conductors are the substances in which electrons are free to move inside the matter, inside the substance. So we can write the definition of conductors. Conductors वो substances होते हैं जिनके अंदर electrons can move freely inside the surface. Conductors are the substances inside which electrons
कैन मूव फ्रीली, जिनकी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स की, तो स्टूडेंट्स इंसुलेटर्स क्या होंगे, इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होंगे, वो मटेरियल होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं कर सकते हैं, जिनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। जैसे कि आपके प्रोटॉन्स फिक्स्ड होंगे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, किसके अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, वी कॉल सच अ सब्सटेंस एन insulator. So insulator are the substances inside which electrons do not move freely. जिन सब्सटेंसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और सॉरी इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो मैटर को बोल सकते हो, उस मटेरियल को बोल सकते हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द सरफेस। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की, तो आई वुड से कंडक्टर्स के लिए जो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, वो आप एग्जाम्पल दे सकते हो आयरन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, ये सब क्या है, कंडक्टर्स है। और मेनली अगर मैं आपको नेक्स्ट शेल में बताऊं तो आपके पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स स्टूडेंट्स कंडक्टर्स होते हैं। और अब अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का जो बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो, वो आप दे सकते हो प्लास्टिक। प्लास्टिक आपके पास क्या है, एक इंसुलेटर है। वुड आपके पास क्या है, एक इंसुलेटर है। देखो स्टूडेंट्स, आई एम हैविंग दिस इन माय हैंड, यू नो कि हम इसको जब पकड़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये मेनली कॉपर की पिंस है, और कॉपर एक मेटल है। तो स्विच के अंदर हम इस पार्ट को डालते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, कंडक्टर है। लेकिन जब हम इसको पकड़ के रखते हैं तो हमें करंट फील नहीं होता है, हमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि ये जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, वो इंसुलेटर है स्टूडेंट्स। और ये जो अंदर जो पिंस आपको दिख रही हैं, ये पिंस कैसी होती हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इस पार्ट में से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं तो ये पार्ट कैसा हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो इसको हम इंसुलेटर कहेंगे। इन पिंस को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और ये मेनली कॉपर की पिंस होती हैं, जो कि क्या होता है, कंडक्टर होता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। सो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ तो अभी हमने एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया, हमने स्टडी किया चार्ज। हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों को ही हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, चार्जेस है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। देन हमने स्टडी किया कि जो सेम टाइप के चार्जेस है, दैट मीन्स लाइक चार्जेस है, वो रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनमें से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में से क्या कर सकता है, फ्लो करता है, तो उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिसमें से चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करता है। और यू कैन से इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव फ्रीली, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और वी हैव स्टडीड द एग्जाम्पल ऑल्सो कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी वाटर फ्लो करता है, तो हम क्या कहते हैं, जब वाटर फ्लो करता है तो उससे क्या फॉर्म होता है, उससे फॉर्म होता है वाटर करंट। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जब किसी सब्सटेंस में से चार्जेस फ्लो होते हैं, क्योंकि आप ये देखो जब वाटर फ्लो कर रहा है, मान लो हम एक झरने की बात कर रहे हैं, झरने में से ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है,
water is flowing from upward to the downward direction, so we can say water current is there. Flowing water, we can say flowing water forms, बहता हुआ पानी क्या क्रिएट करता है, वाटर करंट क्रिएट करता है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स जब चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी सब्सटेंस में से, अब यहाँ पे चार्जेस कौन है, यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है चार्जेस, तो प्रोटॉन्स तो आपके फिक्स्ड हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं किसमें से, कंडक्टर्स में से। तो इसीलिए जब चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं, फ्लोइंग charges forms electric current. Flowing charges forms electric current. जब किसी मटेरियल में से, किसी सब्सटेंस में से अगर चार्जेस फ्लो करते हैं, मतलब अगर चार्जेस मूव करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे फ्लोइंग वाटर है, किसी जगह से पानी फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, तो क्या फॉर्म होगा, वाटर करंट फॉर्म होगा। उसी तरीके से अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं, जैसे कंडक्टर्स में अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली, तो अगर इस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्जेस है इलेक्ट्रॉन्स भी, जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो कहना है इससे इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो चार्जेस। तो अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो फ्लोइंग चार्जेस फॉर्म्स इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी सब्सटेंस में से जब चार्जेस फ्लो होते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि वहां पे क्या क्रिएट हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे क्रिएट हो गया है। उस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि हमने देख लिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखते हैं सपोज ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना लिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और चार्ज जब फ्लो होता है तो क्या फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स फॉर्म होता है। फ्लोइंग चार्जेस मेक्स इलेक्ट्रिक करंट, और यू कैन से फ्लोइंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स और फॉर्म्स इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो उनकी कुछ डायरेक्शन होगी, किसी डायरेक्शन में तो वो फ्लो करेंगे, और वहां पे जब करंट क्रिएट होगा उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से या उस चार्जेस के फ्लो करने से, तो जो करंट क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन ये है फ्लो करने की। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सपोज ये एक कॉपर की वायर है, ठीक है, कॉपर, यू नो दिस कॉपर इज अ कंडक्टर। अभी मैंने बताया था कि ये भी किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं। तो अगर हम इन्हीं को लें कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट की फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होगी, क्या करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा या करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स जो भी डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो करने की, सपोज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है फ्लो करने की उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। तो सपोज अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर सपोज ये है, अगर मैं इसको आपको अगर डायरेक्शन समझाऊं तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, then electric current would flow from east to west. So if I give you a question कि in a copper wire electrons are flowing from west to east, so what would be the direction of flow of current in that copper wire? Then you would say ma'am, flow of direction of current would be from east to west.
सो आई होप स्टूडेंट्स यू आर क्लियर नाउ। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास, अभी तो हमने कौन सा चार्ज लिया था, नेगेटिव चार्जेस की बात की थी, तो अब अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की अगर बात कर लेते हैं, अब हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस है। अगर हम पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की बात करते हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्जेस है या प्रोटॉन्स है वो फिक्स्ड रहते हैं, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट है, पॉजिटिव चार्जेस आपके इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हम सिर्फ ये एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो करंट भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, अगर चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव होंगे तो जो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव चार्जेस की है वही डायरेक्शन होगी क्या, आपकी इलेक्ट्रिक करंट की। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की, उसके ऑपोजिट फ्लो डायरेक्शन होती है किसकी, करंट की। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन अगर ये ले रहे हैं तो करंट वुड ऑल्सो फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। अभी हमने बोला कि फ्लो ऑफ चार्जेस फॉर्म्स इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी कंडक्टर में से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट को हम ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, rate of flow of charges is known as electric current। स्टूडेंट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर है, इसमें से मैं ये चार्जेस फ्लो करवा रही हूँ, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और मेनली मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैं ये देख रही हूं कि 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे इस लाइन में से कितने चार्जेस क्या हो गए हैं, फ्लो हो गए हैं। सपोज 1 सेकेंड में कितने चार्जेस यहाँ से पास कर गए हैं, 1 चार्ज यहाँ से पास कर गया है। 2 सेकेंड्स में कितने कर गए हैं, 2 चार्जेस पास कर गए हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि t सेकेंड्स में, इन t सेकेंड्स हाउ मेनी चार्जेस हैव क्रॉस्ड दिस लाइन, मतलब इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में कितने चार्जेस फ्लो कर गए हैं, कितने टाइम में, t सेकेंड्स में। और t यहाँ पे क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। t कैन बी 15 सेकेंड्स, t कैन बी 14 सेकेंड्स, तो t कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इन t सेकेंड्स यहाँ से कितने चार्जेस क्या हो गए हैं, फ्लो हो गए हैं। तो आप बोलोगे इन t सेकेंड्स Q चार्जेस यहाँ से क्या हो गए हैं, फ्लो हो गए हैं। स्टूडेंट्स हम चार्ज को शो करते हैं बाय द लेटर कैपिटल Q और स्मॉल q। तो मैं मान लेती हूँ व्हेन टाइम वाज t सेकेंड्स के अंदर हाउ मेनी चार्जेस हैव फ्लोन फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, देन यू वुड से मैम Q चार्जेस। अब Q की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो Q चार्जेस have flown from this side to this side in how much time, t time। और इन्हीं दोनों का रेशो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं बाय द लेटर I एंड दिस इज गिवन एज Q charges flowing in t time is known as current। That means current is defined as the charges flowing per unit time, कि कितने चार्ज एक यूनिट टाइम में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक करंट। मैंने पहले भी बोला था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक
करंट। तो रेट का मतलब जब भी हम बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, टाइम। तो हाउ मेनी चार्जेस आर फ्लोइंग इन हाउ मच ऑफ टाइम, दैट रेशियो विल गिव यू इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी। आपको पता है हम लोगों ने 9th में भी किया था, जब भी हम क्या करते थे, स्पीड की डायरेक्शन, स्पीड की यूनिट निकालते थे तो क्या करते थे, स्पीड इज गिवन एज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही करते थे हम। और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो मैं आपको बताती थी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, यही बताते थे। तो ऐसे ही हम करंट की भी यूनिट निकालेंगे यहां से, और करंट की जो एसआई यूनिट होगी दैट वुड, करंट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सब्सटेंस इन यूनिट टाइम। अब स्टूडेंट्स चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, कूलम, एंड टाइम की एसआई यूनिट है सेकेंड। सो करंट की एसआई यूनिट क्या होगी, करंट की एसआई यूनिट होगी कूलम। जो कूलम है वो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, और उसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर कैपिटल सी, कूलम पर सेकेंड। एंड स्टूडेंट्स इस कूलम पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं क्या, एम्पियर। सो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एंड स्टूडेंट्स एम्पियर को आप ए से भी क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। So I hope you have understood the meaning of electric current. Electric current is the rate of flow of charges. And what do you understand by the rate of flow of charges? Q by T. Q charges flowing in T time, that is known as electric current. अब students एक example करते हैं, और example क्या होगा? So what is the SI unit of current? SI unit of current is ampere. अब एक बार साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एम्पियर एसआई यूनिट होगी। अगर इफ आई से 1 मिली एम्पियर तो क्या होगा, जैसे हम लोग किलोमीटर्स की बात करते हैं, और फिर अगर हम जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या लेते हैं, किलोमीटर्स भी लेते हैं, मीटर भी लेते हैं। तो इफ आई से मिली एम्पियर करंट, 1 मिली एम्पियर करंट, तो इसका मतलब क्या होगा, मिली एम्पियर को अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, एम्पियर में, तो 1 मिली एम्पियर मतलब 1/1000 ऑफ एम्पियर्स। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -3 एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर्स। दिस इज वन थिंग। अब स्टूडेंट्स देखो, यू नो करंट इज गिवन एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब ये जो करंट है इसकी एसआई यूनिट हमने देखी क्या है, एम्पियर, एंड चार्ज की एसआई यूनिट है वो है कूलम, एंड टाइम की जो एसआई यूनिट है दैट इज सेकेंड। तो स्टूडेंट्स मैं डिफाइन करना चाहती हूं 1 एम्पियर। व्हाट इज 1 एम्पियर? और जो करंट फॉर्म हो रहा है उस करंट को 1 एम्पियर कब बोल सकते हैं? तो अभी मैंने बात की थी, सपोज ये आपके पास एक कॉपर वायर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एंड आई से कि 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज यहां से फ्लो करेगा इस लाइन से इस पोर्शन से इस पोर्शन में। 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो करेगा, तो मान लेते हैं 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फॉर्म होगा 1 कूलम चार्ज जो फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो इतना चार्ज 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हुआ, तो कितना करंट फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड।
तो कितना करंट फॉर्म होगा 1 एम्पियर. सो हाउ वुड यू डिफाइन 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द करंट formed when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second. जब इस लाइन से 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, तो करंट कितना फॉर्म होगा 1 एम्पियर. सो व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द करंट formed when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second. So I hope students now the concept of electric current, ampere, milliampere, coulombs, second is clear to you. Now we would do one numerical based on the today's discussion. And what is numerical? Numerical is 0.34 coulombs of charge flows across a conductor in 20 seconds. In 20 seconds. What is the current in the conductor? What is the current in the conductor? स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि किसी एक कंडक्टर में से 0.34 कूलम्स चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. कितने टाइम के लिए? 20 सेकेंड्स के लिए. तो आपको बताना है कि व्हाट इज द करंट इन द कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा वो कितना होगा. अभी हमने किया करंट के लिए जो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अब क्यू क्या है? चार्ज, और वो आपको गिवन है कितना है 0.34 कूलम्स. तो चार्ज हो गया आपके पास 0.34 कूलम्स. दिस चार्ज इज फ्लोइंग फॉर हाउ मच टाइम? 20 सेकेंड्स. तो हम यहाँ पे t को क्या कर देंगे, डिवाइड, t की जगह क्या लिख देंगे 20. अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, दैट इज इन द कंडक्टर, दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो. यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगी और जो भी करंट होगा वो आपका किस में आएगा, एम्पियर्स के अंदर. क्लियर? नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं सो दैट कंसेप्ट would be clear to you in a better way. Second numerical है, एक कंडक्टर कैरीज करंट 10 एम्पियर्स. एक कंडक्टर है जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर. हाउ मच चार्ज वुड फ्लो, हाउ मच charge would flow in 30 seconds. स्टूडेंट्स हमें यहां से क्या निकालना है कि एक कंडक्टर है उसमें से 10 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. तो I की वैल्यू हमें मिल गई कितना, 10 एम्पियर. हाउ मच चार्ज वुड फ्लो, तो हमें क्या निकालना है, Q की वैल्यू हमें निकालनी है. ओके, वुड फ्लो इन 30 सेकेंड्स. तो टाइम पीरियड हमें गिवन है कितना, 30 सेकेंड्स. तो हमें अब निकालना क्या है, क्यू निकालना है. तो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है I इक्वल टू क्यू बाई टी. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I इंटू टी. तो ये हो गया I इंटू टी. I की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर्स. करंट की वैल्यू कितनी है, सॉरी टाइम की वैल्यू कितनी है, 30 सेकेंड्स. तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 300 कूलम्स. So I hope students this is clear to you. This was just the introduction of the electricity. In the next part we will seriously start our unit. Thank you.